हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक डेवलपमेंट चैप्टर जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का सबसे सबसे पहला चैप्टर है, जो कि नेम है जिसका डेवलपमेंट। कौन सी क्लास का है ये? 10th क्लास का है, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का। एंड या इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल एंड उसको लाइक शेयर कर दें, कमेंट भी करें। लेट्स स्टार्ट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. Development involves thinking about these questions and about the ways in which can speak, we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. So, this page says about the introduction of the development chapter. The development chapter is all about the progress or the desires we have in our life. To fulfill these desires, those desires, we need a lot of things behind, okay, for achieving those desires. So this development introduction tells us, gives the idea to progress, किस तरीके से प्रोग्रेस हो एक चीज़ का, कि इस चैप्टर में बेसिकली डेवलपमेंट की एक यू नो एक लेवल दी गई है कि पहली लेवल कवर करने के बाद दूसरी लेवल क्या होगी, तीसरी लेवल क्या होगी। इस इसमें तो बस अभी तक हमें यही बताया गया है कि डेवलपमेंट होता बेसिकली क्या है, कि कोई प्रोग्रेस हम कर रहे हैं किसी भी डिज़ायर को लेके, या फिर कोई भी ऐसा आपका जो गोल हो उसको लेकर हम कोई डेवलपमेंट ला रहे हैं। डेवलपमेंट लाना ही एक बहुत बड़ी बात है। सो वो डेवलपमेंट आएगा कैसे, चेंजेस कैसे आएंगे, ये प्रोग्रेस कैसे आएगा, वो चैप्टर हमें बताएगा। व्हाट आ डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोमिसेस, क्या चीज़ डेवलपमेंट जो है प्रॉमिस करेगा। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। वन वांट टू बिकम अ डॉक्टर, another not, another have wanted to become another thing, another type of person, a kind person. Some have goals to clear IAS, some have goals to clear NEET, some have goals which are alike, which are not same, you know. So different लोगों के different goals होते हैं. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. हमें ये देखना है कि डेवलपमेंट इन लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। Now try to complete the table. You can also add any other category of persons. दूसरी categories of persons भी हम ऐड कर सकते हैं। इधर यहाँ पे ये साइड से क्या है, you want a car. The way our country is set up, all you can hope for is maybe to one day own the rickshaw you pull. So the person who is owing the rickshaw is saying to the another person or the child
अपने ही बेटे से या फिर किसी पर्सन से वो कह रहा है कि आपको एक कार चाहिए, तुम्हें कार तो नहीं मिल सकती, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी कंट्री की हालत चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, उस हिसाब से तुम एक दिन रिक्शा ज़रूर खरीद लोगे, so that you can earn some wages. Okay, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब उन कैटेगरीज में भी क्या डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं लोगों के, वो लैंडलेस रूरल लेबरर्स के जो लैंडलेस है, इधर से उधर भटक रहे हैं, एंड दे वांट रूरल लेबरर्स, दे आर रूरल लेबरर्स जो कि लेबरर्स हैं, ठीक है, जो कि लेबरर्स हैं, जो कि वेजेस पे बहुत कम वेजेस पे काम करते हैं आपका। मोर डेज ऑफ वर्क उनको चाहिए। उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है टू ग्रो इस उनको ज़्यादा काम मिले एंड बेटर वेजेस मिले, अच्छा खासा पैसा मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, जो आसपास के विलेज एरियाज में स्कूल्स हैं वो उनके चिल्ड्रन को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एंड वहाँ पे कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो या फिर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन दी विलेज। जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं उनको भी एक लीड रोल प्ले करने का मौका मिलना चाहिए विलेजेस में। ये डेवलपमेंट किसके हिसाब से हो गया, लैंडलेस रूरल लेबरर्स के हिसाब से हो गया। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अगर पंजाब के फार्मर्स की बात की जाए तो अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप laborers, they should be able to settle their children abroad. So they should settle their children abroad and cheap wages नहीं मिले उनको, cheap चीज़ें नहीं बेचे, and they want to become more and more rich, ठीक है, ये उनका गोल रहता है। तो बेसिकली इस पूरी टेबल में हमें बताया गया कि किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं और वो किस तरीके से अचीव करते हैं, अचीव कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। Having filled table 1.1, let us know, now examine it, ठीक है। Do all these persons have the same notion of development? क्या सबके जो intentions हैं डेवलपमेंट गोल्स के, क्या वो सबके सेम है? नहीं, हम तो नहीं देख पा रहे सेम। So most likely not, ठीक है, हम ज़्यादातर उनके नहीं देख पा रहे। Each one of them seeks different things. They are looking for different things. They seek things that are most important for them, ठीक है, वो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं जो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। that which can fulfill their aspirations or desire, जो उनके aspirations को, जो उनके goals को फुलफिल कर पा रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए एज अ डेवलपमेंट। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स मे सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, एट अ टाइम एक पर्सन या टू पर्सन्स है, सपोज एक डेवलपमेंट हुआ है, जो ये ए है एंड ये बी है, वो ए के लिए तो अच्छा है, बी के लिए अच्छा नहीं है, वो डेवलपमेंट, ठीक है। ए एक फार्मर है और बी एक क्या कह सकते हैं ऑफिस एम्प्लॉय है, ठीक है, बी एक ऑफिस एम्प्लॉय है, सपोज करते हैं, ये एक फार्मर है, ये एक ऑफिस एम्प्लॉय है। तो ए के लिए क्या डेवलपमेंट अच्छा होगा कि क्रॉप्स जो हैं हाई प्राइसेस में बिक रही हैं, लार्ज अमाउंट में बिक रही हैं, एंड वो ज़्यादा जो है चीप अमाउंट में नहीं बिक रही हैं, वो रिच अमाउंट में बिक रही हैं, ज़्यादा कॉस्ट जो क्रॉप्स की है वो हाई हो गई है। तो वो फार्मर ए के लिए तो अच्छा होगा, ऑफिस एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं वो इनको तो अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, लेकिन इनसे ही जो लिया जा रहा है इनकी इनकम लो होती जाएगी इसकी वजह से। सो ए के लिए वो अच्छा हो रहा है, बी के लिए नहीं
नहीं अच्छा हो रहा है, तो ये अराइज कर सकता है एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करवा सकता है अगर एक डेवलपमेंट ए के लिए अच्छा है बी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू इस लाइन को समझाया जा सकता है। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. इंडस्ट्रियलिस्ट्स को काफ़ी सारे डैम्स चाहिए होंगे. As much as the opportunity a boy gets, a girl should also get. These lines are talking about this development. ठीक है. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as ट्राइबल्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से. They might resent this and may prefer small check dams. वो चाहेंगे कि डैम्स ना बने, छोटे छोटे डैम्स बने और उनकी जो जगह है, उनकी रहने की जो आने जाने की रहने की जगह है, फॉरेस्ट जैसी चीज़ को हटाया ना जाए. ट्राइबल पीपल जाएंगे एंड और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड. सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. लोगों तरह तरह के लोगों को तरह तरह का डेवलपमेंट अच्छा लगता है. जो ए के लिए अच्छा है वो बी के लिए नहीं अच्छा हो सकता बाई चांस, और बी के लिए जो अच्छा है वो बाई चांस ए के लिए नहीं अच्छा हो सकता. ऐसा डेवलपमेंट डिफरेंट पर्सन्स विद डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स कहलाता है. एंड टू सेकेंड वाला क्या है, what may be development for one may not be development for the other. ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं दोनों सेंटेंसेस. दैट जो डेवलपमेंट एक के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए नहीं अच्छा हो सकता. मे बी इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए. इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम और दूसरे गोल्स के साथ. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing what people desire are regular work. अगर टेबल 1.1 को हम थोड़ा एनालाइज करके बताते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों को रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, डिसेंट प्राइसेस चाहिए फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस. अच्छा खासा पैसा चाहिए एंड रेगुलर वर्क चाहिए उन्हें. इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. उनको पैसा चाहिए ना, वही बात. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन way or the other, people also seek things like equal treatment. इसके अलावा डेवलपमेंट और क्या हो सकता है? इक्वल ट्रीटमेंट, लोगों को इक्वल ही ट्रीट करना, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दे रीसेंट डिस्क्रिमिनेशन. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. ये सारे ही इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं विद दी along with the development. In fact, in some cases, these may be more important than मोर इनकम और मोर कंजम्पशन से ज़्यादा अच्छा इनको कंसिडर किया जा सकता है. बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. गुड्स और मटेरियल उतना इनफ नहीं होता विद दैट ऑफ बेटर आपको क्या मिले, एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, या फिर फ्रीडम मिले एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिले. मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई with it is one factor on which our life depends. मनी एक फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जिससे लोग खरीद सकते हैं खाना. बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव. ठीक है, इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल्स ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but by they mean a lot to our lives. जैसे कि better you can say equal treatment is a type of development which you need in your life to live a good life. These are often ignored. ये सारी चीज़ों को ज़्यादातर इग्नोर ही किया जाता है. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. जो कि मेजर नहीं किया जा सकता वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल है.
If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. उस जॉब के लिए हम ज़्यादातर हर चीज़ को देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम इनकम हम सारी चीज़ें देखेंगे, क्या फैसिलिटीज़ हमारी फैमिली को मिल रही हैं, या फिर कैसा वर्किंग एटमॉस्फेयर हमको वहाँ मिलेगा, या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी, उससे हम क्या लर्न कर सकेंगे. इन अदर केस अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे, चाहे आपकी इनकम क्यों ही लेस ना हो. दैट एनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ये ज़्यादा सिक्योरिटी आपको सिक्योर कर देता है दैट ऑफ इनकम से. अनदर जॉब however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. Suppose you have a high income whereas you are not getting that much of facilities as the one who is getting less income but it is getting a more time for his family. So this is the sense of security and freedom. इसी को ही हम sense of security and freedom बोलेंगे. Similarly for development, people look at a mix of सारी चीज़ों को देख के ही डेवलपमेंट को किया जाता है. जैसे एक चीज़ हुई, दूसरी चीज़ आपकी लिस्ट के हिसाब से गलत है, तो ये तो भाई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. अगर वो विमेन जॉब है उस विमेन के पास, तो उसकी जो सोसाइटी में इमेज है वो इंक्रीज हो जाती है. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. अगर women भी educated हो जाए and they are also going for the job, तो equal treatment मिलना हो गया ये, ठीक है. A safe and secure environment may allow more women to take a variety of jobs और run a business. अगर उनको सेफ्टी दी जाए, प्रोवाइड की जाए, सो उनको क्या है, अच्छा खासा बिजनेस या फिर अच्छा खासा जॉब्स मिल सकती हैं. Hence the development goals that people have are not only about the better income. लोगों की यही नहीं राय रहती है कि इनकम ही हमारी बढ़े साथ में, but also about other important things in life. दूसरी चीज़ों को भी साथ में लिया जाता है. National development. If, as we have seen above, individual seeks different goals, then their notion of national development is also likely to be different. नेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा उसको हम नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे. सो ये भी डिफरेंट होता है लोगों के हिसाब से. डिस्कस अमंग योर सेल्स और ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. अपने आप से देखो कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स आएंगे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग. In fact, you might yourself think of many different answers कि ये होना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. आपके हिसाब से भी काफ़ी डिफरेंट आंसर्स आएंगे. एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ दी एनी ऑफ दीज कि ये होगा भी डेवलपमेंट या नहीं होगा ये डेवलपमेंट. तो ये भी चीज़ें आप लेके जाएंगे अपने माइंड सेट में, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड क्या that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. लोग क्या चाहेंगे कि डिफरेंट लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, किसी को लगेगा नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वहीं आपका डेवलपमेंट गोल्स नीचे चले जाएंगे. क्योंकि कुछ 50% को लग रहा है, 50% को नहीं लग रहा, तो उन 50% को भी साथ में लिया जाएगा दैट इनको नहीं लग रहा सही, तो ये चीज़ नहीं होगी सही. However, can all the ideas be considered equally important? और if there are conflicts, how does one decide? Conflict हो रहे हैं suppose, तो क्या होगा? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? क्या ये डेवलपमेंट कम अमाउंट में दे रहा है लोगों को डेवलपमेंट, या फिर लार्ज अमाउंट में मिल रहा है? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है इन क्वेश्चंस को सोचना कि क्या पूरे नेशन को फ़ायदा मिलने वाला है या कुछ लोगों को. अगर कुछ को मिल रहा है तो वो डेवलपमेंट होगा ही नहीं, वो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट,
हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज को अपनी कंट्री से कैसे कंपेयर करें या फिर स्टेट्स बाई स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड. कुछ कह जाती हैं डेवलप्ड, कुछ कह जाती हैं अंडर डेवलप्ड. बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपकी सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम? लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन द क्लास itself. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? They differ in their height, health, talents and interests. The healthiest student may not be the most studious one. बहुत अच्छा खासा पढ़ाई में नहीं हो सकता, ठीक है, healthiest student. The most intelligent, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, may not be the friendliest one. वो फ्रेंडली नहीं होगा शायद. So how do we compare students? किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. कंपेयर करते हैं. वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. हम डिफरेंट टीम्स में उनको बांट देते हैं कि अच्छा तुम इसमें अच्छे हो तो यू गो देयर, अच्छा तुम वाली टीम के हो, ओके यू गो देयर. स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट? हम फिर भी एक प्रोग्रेस की बात करेंगे कि ऑल राउंड प्रोग्रेस आए क्लास से. यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम उठा लेते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको जज करते हैं. यू नो, ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. फ्रेंडलीनेस एक कंपैरिजन का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फ्रेंडलीनेस. एक स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी कितनी है, या फिर मार्क्स कितने सिक्योर कर रहा है वो. दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. डेवलपमेंट के लिए भी ये ट्रू है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. लोगों की इनकम जो है कंट्रीज को कंपेयर करने में हेल्प करती है. उनकी एवरेज इनकम निकाली जाती है. एंड वॉट एवर कंट्रीज विद हायर इनकम आर कॉल्ड एज are more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. Rich country होगी obviously वो, so greater income itself is considered to be important goal. एक important goal हो जाएगा income. Now what is the income of a country? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. However, for comparison between the countries, total income is not such an useful measure. टोटल इनकम हमारे लिए यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्री में पॉपुलेशन कम हो सकती है. कुछ सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन के हिसाब से इनकम भी डिफरेंट हो सकती है. इसलिए टोटल इनकम ही मैटर नहीं करती. इसलिए हम पॉपुलेशन को भी साथ में लेके चलते हैं. कंपेयरिंग इन टोटल इनकम विल नॉट टेल अस विद एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न. क्या एक एवरेज पर्सन अर्न कर रहा है? आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अनदर different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income को हम per capita income कहते हैं. Average income को हम per capita income कहते हैं, जो कि total income upon total number of population होती है. In World Development Reports WDR के according, brought out by the World Bank, World Developmental Reports कौन लाया? वर्ल्ड बैंक लाई. दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज. पर कैपिटा इनकम यूज किया जाता है. कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग एक डॉलर यूएस का डॉलर बुक कर दिया गया है. जो भी इनकम निकाली जाएगी यूएस डॉलर में निकाली जाएगी, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा. कन्फ्यूजन से बचने के लिए 49,300 per annum and above in 2019
आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्रीज. रिच कंट्रीज कौन सी होंगी? 49,300 जिनका रहेगा यूएस डॉलर, एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 2,500 or less are called low income. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2019 was just US dollar 6,700 per annum. तो ये लो मिडिल क्लास में आती है. The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. इंडिया में एवरेज इनकम. एवरेज इनकम जैसे कि इसमें क्या है, एवरेज इनकम कंट्री ए, ब्रीफ में बता रही हूँ मैं, कंट्री ए और कंट्री बी की दे रखी है एवरेज इनकम. ठीक है, यहाँ पे आपको दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ एवरेज इनकम जब हम इन दोनों की निकालेंगे, ठीक है, दोनों की एवरेज इनकम निकालेंगे तो सेम आएगी. यहाँ सेम आ रही है, लेकिन हम जब देखेंगे कंट्री बी में लोग रिच वाला एक ही है एंड सारे मिडिल मिडिल लो लो है, लेकिन यहाँ इक्वल चल रहा है मामला. तो ये भी रहता है एक डेवलपमेंट की, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एवरेज सेम निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे सबके अलग अलग है. ठीक है. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया.